Managing partner at S. Jain and Associates Chartered Accountants and in charge of Surat branch of the firm's S. Jain and Associates. He is member in practice of institute since 2017. He has completed his diploma in information system audit, that is DISA, from ICAI. He has completed certificate course on forensic accounting and fraud detection from ICAI. He has completed certificate course of concurrent audit of banks from ICAI. He has also completed certificate course of forex and treasury management from ICAI. He has completed masters in business administration. Presently, he is pursuing PhD in commerce from Veer Narmad South Gujarat University, Surat, and CS professional from ICSI. He is nominated member of Banking, Financial Services and Pension Committee of WRC of ICAI. He is regular speaker on the topics of bank audits and income tax. He is also a member of Career Counseling Group of ICAI. Also an active member in Surat branch of WRC of ICAI. He is practicing in the field of auditing and taxation, has very good experience and expertise in statutory bank audits. He has experience in representing cases before various tax appellate authorities. His core area of practice is providing tax consultancy services, auditing and assurance. He has more than 8 years of cumulative pre and post qualification experience in the field of bank audit at various roles such as statutory, central as well as branch audit, concurrent audit of large and specialized branches, information system audit, revenue audit and stock and receivable audit. As part of his practice, he is providing regular consultancy to corporates in the field of taxation and internal audits for implementation of system and internal controls to various MNCs. Now I request CA Virag Shah sir to present a memento to our esteemed speaker as token of appreciation and gratitude. I request Gopal sir to join us. Thank you so much. I request Rohit sir to start the session. I have shared my PPT. Can anyone help me with this? With the branch. चलिए तब तक बात करते हैं. Good afternoon. Good afternoon. कम जने हैं पर बातें अच्छी करेंगे. So, thank you first of all for WARC for arranging this event, organizing this event on the concurrent audit of bank branch bank. वैसे तो मैंने WIRC को बोला कि this is the time when people are looking for the statutory branch audit,
एंड यू आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट ऑन कॉन्करेंट ऑडिट. सो आपको क्या लगता है, सही टाइम है कि क्या टाइम है? आई विल सीक योर पार्टिसिपेशन. मैं आपसे थोड़ा डिस्टर्ब करते रहूँगा. वैसे गोपाल भाई ने बराबर किया है, उन्होंने अकाउंट खोल दिए हैं, अब अपन उसमें से रिकवरी करवाएंगे. खोलने का काम उन्होंने कर दिया ना, तो आधा काम उन्होंने कर दिया, कस्टमर वो ले आए. अब हमको कस्टमर को रिटेन करना है और उसके साथ बैंक की बिजनेस भी, रेवेन्यू भी बढ़ाना है. तो हम उस पर काम करते हैं. सो वी आर डिस्कसिंग ऑन द कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ ब्रांच. In my opinion, you must be heard many times since last 2-3 years that the scope of bank audit is reducing day by day. Is it correct? सबने सुना है ना कि कॉन्करेंट ऑडिट मतलब जो भी है, बैंक ऑडिट कम होती जा रही है. एग्री, पर कौन सी वाली? आई विल से इट इज स्टेचुरी ब्रांच ऑडिट. द स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. फ्रेंकली सेइंग, द रेम्यूनरेशन फ्यू बैंक हैज़ इंक्रीज्ड. सबसे पहले पैसे की बात करते हैं, क्योंकि पैसा अच्छा मिलेगा तो कॉन्करेंट ऑडिट अच्छी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. सो इन माई ओपिनियन द स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. द बैंकर आर लुकिंग टू गिव यू वर्क इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल. अभी रिसेंटली एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशल ऑडिट अपॉइंट किया है, ओपन किया है कि वॉट एवर द फीस यू वांट टू कॉट फॉरेक्स ब्रांच के लिए, अगर आपको पता होगा. If you are already doing, then they have seeks for an separate quotation of a single branch, giving an 2 lakh rupees of per branch. Only dedicated forex branch है 2 लाख रुपए दे रहे हैं. It means the quantum on fees is good. सबसे पहले अगर 2-3 बैंकों के नाम लेता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली दे रहे हैं, इट इज़ पब्लिकली अवेलेबल. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, these are giving a good amount of fees. You might be agree. कुछ बैंक्स हैं जो अभी कम दे रही है, एंड वी विल सीक्स योर रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज योर रिक्वेस्ट लेटर, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू गिव एन लेटर टू इंस्टीट्यूट वाया इंस्टीट्यूट टू द बैंकर, वेयर द फीस आर वेरी नॉमिनल, बहुत कम है. जैसे बाकी के जो रिमेनिंग बैंक्स हैं उनका चार्जेस या फीस बहुत कम है. बैंकर आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वर्क फ्रॉम अस, बट एट द सेम टाइम नॉट रेडी टू पे एनीथिंग, या पेइंग वेरी नेग्लिजिबल. बट व्हेन वी सी, मैं शायद आज ही एक बैंक का एप्लीकेशन ओपन हुआ है. आई वॉज मीटिंग विद लास्ट वीक, आई हैड मीटिंग विद दैट GM हु इज हेडिंग दैट इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ दैट बैंक. सो मेरा बात हुआ, मैंने कहा सर अब तो टाइम हो गया है, आपको लगता नहीं कि अब पैसा बढ़ाना चाहिए? बोले रोहित पैसा किस लिए बढ़ाना चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं आ रहा है. मैंने कहा सर ये वाइज वर्सा है. द प्रॉब्लम इज यू आर सेइंग कि क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं आ पा रहा है, और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बोलते हैं कि पैसा नहीं है इसलिए क्वालिटी नहीं दे पा रहे. बिकॉज एज ऑफ नाउ द आर्टिकल वी आर बीइंग पेड, लाइक वी आर पेइंग फॉर 10,000 रुपीज मिनिमम, और आप बोलते हो 20,000 रुपये में आपको 1 महीने का कॉन्करेंट ऑडिट करना है. इट इज़ नॉट रिलेटिवली गुड. और बॉम्बे की अगर बात कर दो तो भूल ही जाए, स्मॉल साउंड सिटी तो फिर भी चल जाएगा. सो ऑल्दो वी, बिकॉज आई एम द कमिटी ऑफ बैंकिंग इन WARC, सो आई हैव रिक्वेस्टेड द कमिटी कि वी शुड मेक एन रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द बैंकर सेइंग दैट व्हाट आर द फीस. 2015-16 से आज तक फीस नहीं बढ़े आपने. स्टॉक ऑडिट की आज एक्सपेक्ट करते हो. आई लव स्टॉक ऑडिट्स. मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोन एंड एडवांसेस के लिए वही सबसे बढ़िया है, because they independently appoint a chartered accountant, do the verification of the books of accounts of the person or the borrower, where the genuineness of transaction get out. मतलब पता चलता है हमको कि क्या बिजनेस हो रहा है. अगर आप सच में चाहते हो कि बिजनेस ऑडिट करना है, यू शुड इंक्रीज द फीस. अब आप 5 करोड़ 10 करोड़ तक का बिजनेस लेके हमको बोलते हो कि सर 10,000 रुपये देंगे, इट इज़ नॉट वर्केबल ही नहीं है. अगर आप चाहते हो क्वालिटी आए, इंक्रीज वन टाइम, एक बार बढ़ा के देख लीजिए, फिर बात करेंगे. सो वी आर प्लानिंग टू गिव एन रिप्रेजेंटेशन. यू कैन सेंड योर रिप्रेजेंटेशन और लेटर, वॉट एवर सजेशंस यू आर गिविंग. Either my number is already there, I'll share it at the end of day, or the WIRC directly. So in the next month after March we will be representing to the various bank, so that जो मई और जून में कुछ आ रहे हैं उनके लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा. ठीक है, coming to my topic. So the
WIRC has given me a topic of revenue leakage in the bank audit. It is very important in my opinion because the problem is concurrent audit के perspective से ये important इसलिए है because the banker are raising penalty on us. पहले तो पैसा है नहीं है, उल्टा है उसमें से काटने की बात कर रहे हैं. They are deducting the fees out of the amount, मतलब in ratio of amount internal auditor has identified. हमारा काम का वेरिफिकेशन कब होता है? जब मेरा इंटरनल ऑडिट आता है ब्रांच का. उस टाइम पे लीकेज निकलेगी और बैंकर बोलेगा लीकेज का 10% आपकी फीस में से कटेगा. और अगर आपकी फीस 40,000 रुपये और 4 लाख से ज़्यादा लीकेज निकल गया तो आपकी फीस कितनी होगी? और उससे ज़्यादा हुआ तो वापस ले लोगे कि क्या करोगे? मैं ये समझना पड़ेगा. बट नेवरदलेस जोक नहीं है, बट इफ़ आई एम देयर इन द ब्रांच, फीस इज सेकेंडरी मैटर. मैंने वो डिस्कस कर लिया आपके साथ बिकॉज आप बोलोगे कि मुझे क्वांटिटी वैल्यू नहीं मिल रहा है, फीस नहीं मिल रही. सर, इफ आई एम अपॉइंटेड एज एन कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ अ ब्रांच एंड आफ्टर मी इफ समवन आउटसाइडर हैज केम एंड फाइंड इट आउट लीकेज, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई वर्क? मुझे खुद को क्या लगेगा कि भाई मेरा कॉन्करेंट ऑडिटर और मेरी फर्म का नाम कहाँ जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो क्या करती है, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल दैट इन 3 years आई हैव डन ऑडिट ऑफ अ 1 branch and I got an excellent ranking because of my staff. हम तो कितने ही जाते हैं, our staff should be trained enough because they are working regularly. State Bank पूरी list छाप देगा कि these branches, these accounts, this amount of revenue leakage has been identified and the quantum is so high. Points क्या क्या हैं मैं आपको बहुत straight forward, हम बोलेंगे रेवेन्यू लीकेज नहीं निकलता है, आप एग्री बात करते हैं, एवरीथिंग इज सिस्टम जनरेटेड, सब सिस्टम है तो रेवेन्यू लीकेज आना ही नहीं चाहिए. हेलो सर, सिस्टम है तो रेवेन्यू लीकेज नहीं आना चाहिए. मैं आज उन टॉपिक्स को कवर ही नहीं करने वाला हूं जहां सिस्टम है और रेवेन्यू लीकेज नहीं आना चाहिए. आई बी ओनली टचिंग अपॉन, बिकॉज मेरे पास है 45 मिनट्स, इसमें से 5 मिनट मैंने दूसरी बातों में निकाल दिए. सो आई ओनली टच अपॉन द पॉइंट्स वेयर देयर इज चांसेस ऑफ रेवेन्यू लीकेज एंड नो कनेक्शन ऑफ सिस्टम. करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं. इट इज डिस्क्लेमर. सो if I say any example, it is from my personal experience, or if I take any of the bank name, it is not genuine. मैं अगर बैंक होगा तो चेंज करके ही बोलता हूँ. This is my quote. Revenue leakage in the bank rarely happen because of frauds. It's merely happen for mistakes in system. But that system error create a bigger impact overall of bank account. This is my वन लाइनर वेयर आई अंडरस्टैंड कि हमने 2017 में एक ऐसा पॉइंट निकाला था विच आई सबमिटेड टू द CFO एंड द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, क्रेडिट मॉनिटरिंग, एंड द CGM क्रेडिट मॉनिटरिंग हैज कॉल्ड मी एट देयर ऑफिस, प्लीज कम बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड इट आउट हाउ यू फाइंड इट आउट. आपने कैसे निकाला, क्योंकि हो सकता है या तो समय आपने दिया, मतलब यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द ऑडिट एज वेल एज सिस्टम. फर्क पड़ता पड़ेगा सर, आइदर मेरा स्टाफ ट्रेंड हो और आइदर मैं खुद ट्रेंड हूँ. मैं खुद जाके काम नहीं कर सकता, इसलिए मेरा स्टाफ ट्रेन होना चाहिए. सर, फ्रेंकली सेइंग, आई एम ऑल्सो एंगेज इन द कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक, और मेरे स्टाफ की गाली मुझे पड़ती है. प्रॉब्लम इसलिए पड़ती है कि इतना परेशान करके रखते हैं कि बोले सर धंधा करें कि आपकी ऑडिट ही करवाएंगे. दिस इज द फैक्ट. अब मेरे यहाँ की एक लड़की है, वो इतना अड़ जाती है कि नहीं सर मैं तो डालूंगी. मैं रुकना भाई, अगली बार वापस ऑडिट भी तो चाहिए. मतलब समटाइम रेवेन्यू लीकेज इतना बड़ा बड़ा आ जाता है. जब इंडस्ट्रियल अकाउंट है, अकाउंट चले जाएगा. वन ऑफ माई स्टाफ हैज आइडेंटिफाइड 40 लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू लीकेज इन द वन ऑफ द अकाउंट. 40 लाख रुपए. अब क्या है, परफॉर्मेंस हमारी भी तो दिखानी पड़ेगी. मेरे स्टाफ का अप्रिसिएशन, मैंने कहा हाँ ठीक है सर, चल तेरे को जनरल ऑफिस लेके चलता हूँ. अप्रिसिएशन वहाँ तक ठीक है सर, रिकवर कर दीजिए, आई विल नॉट रिपोर्ट. माई इंटेंशन इज टू क्लियर माई बैलेंस शीट. कल कोई दूसरा आके निकालेगा, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा सर. कभी भी सर बहुत दिक्कत होती ना, बड़े बड़े रेवेन्यू लीकेज आते हैं. तो रेवेन्यू लीकेज में प्रॉब्लम किसकी है, व्हाट इज द इशू? रेवेन्यू लीकेज जेन्यून है, बैंकर भी चाहता है कि लगे, पार्टी भी एग्रीड थी. जिस दिन उसने सैंक्शन नोट साइन किया तब एग्री थी ना. पार्टी क्या बोलती है, आपने क्यों चार्ज नहीं किया?
सर आप 9 महीने के बाद निकाल रहे हो, आपने क्यों चार्ज नहीं किया पहले? आपको पहले कर लेना चाहिए, आप क्यों चार्ज कर रहे हो? तो ये कंटेंशन वो बैंक ब्रांच के सामने लगा है, होल बैंक के सामने लगा है, मेरे सामने तो नहीं चला है. वी नेवर गोइंग टू डिस्कस विद एनी ऑफ द क्लाइंट्स. हम किसी क्लाइंट के साथ बोले सर पार्टी, मी एंड बैंक, दैट्स इट. सर ये बहुत बार हमने तो, बिकॉज आई हैड डन सेंट्रल ऑडिट ऑफ 2 banks, so some many of the time banker says sir please party wants to explain. मैंने कहा you heard it because I have given an MOC to you whatever the case it is. सर बहुत बार बहुत अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई लोग इसलिए फंस चुके हैं सम टाइम, भले उन्होंने कुछ बोला या नहीं बोला है, whether they have done discussion or not, because in the branch itself they have meet with the borrowers and frankly many of the time they are genuine. वो बोले सर टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ बोरोवर दे जस्ट हर्ड इट, कि सर ठीक है मैं आपकी पॉइंट सुन लेता हूँ, क्या आपका क्या कहना है शायद ब्रांच मैनेजर कन्वे नहीं कर पाएगा आपको, इसकी वजह से फंस चुके हैं. सो डोंट एंटरटेन इट. कितनी दया आ रही है आपको, डोंट गो फॉर इट. ठीक है, कमिंग टू माई पॉइंट, मैं कहाँ था, डाइवर्ट हो गया. 40 लाख रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू लीकेज. रेवेन्यू लीकेज सिस्टम की वजह से आता है, ये तो अपने को पता ही. सिस्टम की वजह से नहीं आएगा तो मैनुअल आएगा. किन किन पॉइंट्स पे मैनुअल लीकेज आएगा? क्या रेवेन्यू लीकेज जब मैं बात करूंगा इट इज ओनली फॉर इनकम नॉट फॉर एक्सपेंडिचर? नो, मैं दोनों जगह बात करूंगा, वेदर इट इज इंक्रीज इन द रेवेन्यू, वेदर इट इज डिक्रीज इन द रेवेन्यू, एट द सेम टाइम वेदर इट इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर और द डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर. एक ब्रांच गए थे, स्टेचुरी ऑडिट की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू लीकेज. हम लोग स्टेचुरी ऑडिट में भी रेवेन्यू लीकेज निकाल लेते हैं, शायद आप भी कर लेते होंगे. कम से कम मैं बोलता हूँ मेरी बैलेंस शीट खाली तो नहीं जानी चाहिए. अब हमने रेवेन्यू लीकेज किसके लिए निकाला? किसी ब्रांच के कॉन्करेंट ऑडिट की फीस ही डेबिट नहीं हो रखी है. बहुत सिंपल है ना सर. 12 महीने की फीस, मुझे ये दिखता है कि कॉन्करेंट ऑडिट 40,000 रुपए की फीस है, 4,80,000 का एक्सपेंडिचर डेबिट होना चाहिए. नहीं है तो एक प्रोविजन तो बना लो. हो सकता है आपने बिल नहीं दिया, कुछ बैंक्स बोलते हैं कंप्लाइंस होने के बाद बिल रिलीज करेंगे, इट्स फाइन. प्रोविजन हैज टू क्रिएटेड ना. सो मेरा ब्रांच का, क्योंकि आप लिमिटेड रिव्यू भी करते हो, बीइंग एन कॉन्करेंट ऑडिटर यू आर साइनिंग अ लिमिटेड रिव्यू. आप खुद की बैलेंस शीट लिमिटेड रिव्यू साइन करके दे रहे हो, ऑल्दो वी आर नॉट गिविंग अ लिमिटेड रिव्यू. आजकल बहुत बैंकों ने, जैसे एक आध बैंक को तो हमने रिप्रेजेंटेशन मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू डू द लिमिटेड रिव्यू बिकॉज द बैंक इज नॉट, वी आर नॉट अलाउड टू डू द लिमिटेड रिव्यू. लिमिटेड रिव्यू इज द स्टेचुरी फंक्शन, should not be entertained by the concurrent auditor. Alternatively, एक बैंक को हमने जब रिप्रेजेंट किया, उन्होंने एक बोला कि ठीक है सर, 7 दिन लेट हुआ उनका कंप्लाइंसेस बिकॉज सेंट्रल ऑडिटर वाज गुड एंड दे सपोर्टेड, ही इज करेक्ट. हमने ही 5 लोगों से मेल डलवाए कि सर मेरे स्कोप में ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा. सो व्हाट दे सेड, ओके कैन यू डू एनपीए रिव्यू सर्टिफिकेट? यस, we have given an assignment to verify whether the categorization of NPA is done correctly or not. For that purpose we have asked and we have given the certificates, but we have not signed on a financial statement, that is balance sheet and P&L, because we are not a statutory auditor of the bank. So जब limited review आप as a bank बोलते हो, हमने यही बोला, मैंने कहा when you are talking about limited review and you are getting signed by the central auditor, वहाँ भी कोई internal auditor देके उससे sign करवा दीजिए ना सर. लिमिटेड रिव्यू क्या है? बैंक हैज टू सबमिट अ क्वार्टरली रिजल्ट टू द सेबी बिकॉज इट इज ए लिस्टेड एंटिटी, देन दे आर गेटिंग साइन फ्रॉम द स्टेचुटरी सेंट्रल ऑडिटर, देन व्हाई इट इज बीइंग डन बाय द कॉन्करेंट ऑडिटर? वेरी सिंपल. सो दैट इज व्हाई वी हैव नेवर साइंड इट. ठीक है, मैं एक्सपेंडिचर साइड पहले देता हूँ. बहुत सारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो क्वार्टरली रिव्यू का, मैं ये बोलता हूँ इफ इट इज एन क्वार्टरली देन वी हैव टू गेट इट डन. सर बैलेंस शीट में 15 मिनट नहीं लगता हमको देखने में. जब भी क्वार्टर एंड क्लोज कर रहे हो, आस्क फॉर और ट्रेन योर स्टाफ. एक क्वार्टर में ट्रेन कर दो कि 4 क्वार्टर का काम हो जाएगा. दे विल जस्ट रिव्यू एक्सपेंडिचर साइड कि देन एन एनी एक्सपेंडिचर विच हैज बीन मतलब नॉट पेस्टेड, नॉट पंच्ड, प्रोविजन हैज नॉट बीन, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट नहीं डालते हैं क्योंकि पेमेंट नहीं किया है, बिल नहीं आया पार्टी का. सर क्वार्टरली है, क्लोज कर दीजिए उसको. स्टेचुटरी ऑडिटर, सर मैं शुरू में आके बोला कि व्हेन पीपल आर मेकिंग वेटिंग फॉर द स्टेचुटरी ब्रांच ऑडिट वी आर डिस्कसिंग ऑन कॉन्करेंट ऑडिट, इज इट अ गुड टाइम? इन माय ओपिनियन यस, करेक्ट. अगर आपके होते कोई एमओसी देके चले गया, वेदर यू विल गेट अ लेटर और नॉट, किसके लिए एमओसी आएगी?
स्टॉक स्टेटमेंट जो सबमिट किया वो प्रॉपर नहीं था. You have not done comparison of stock statement as well as balance sheet as on 31st March 2025. हेलो, सब है ना साथ में? बस ठीक है. 31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ती है सबको. What is the due date? Every borrower has to submit financial statement up to a certain date in every bank. वो डेट क्या है? Either it is 38th of September or 38th of November. जनरली इट इज 38th of November. अपने को 7 मंथ 9 मंथ का टाइम मिलता है, तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाने चाहिए. नहीं आए तो 2 प्रॉब्लम है. क्या क्या? हेलो, एक तो दीपिका कैलकुलेशन जो अपन सोच रहे हैं, दूसरा अपना टॉपिक क्या है? रेवेन्यू लीकेज. है कुछ याद आ रहा है? Non submission of financial statement up to 30th of November or the date prescribed by the bank, penal interest should be charged at the rate 4 महीने का penal interest 10 करोड़ रुपए की लिमिट. सर कितने ही अकाउंट में लगवाए? बाद में आते हैं. 31 मार्च पे जब मैं रिजल्ट निकाल के दूंगा ना, तब जरूर आते हैं. उसके बाद 1 दिन में आ जाते हैं, बाकी 4 महीनों में कभी नहीं आया. सर इज इट करेक्ट ना? सब जब नहीं आया तो आपने इवेल्यूएशन क्या किया? एट द सेम टाइम गोपाल भाई वाज डिस्कसिंग वन पॉइंट, जहां उन्होंने पेपर बताया था कि द लिमिट ऑफ द बोरोवर अकाउंट शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मेरे ही एक क्लाइंट के पास ये मैसेज आया हुआ है कि योर लिमिट हैज बीन ब्लॉक्ड. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सर्टेन लिमिट बताया था, 5 करोड़ का टर्नओवर है, उतना ट्रांजेक्शन दिया उन्होंने, करंट अकाउंट था. उसके बाद क्या? ब्लॉक कर दिया बैंक ने, लिटरली ब्लॉक कर दिया. मैंने बोला सर इट इज योर प्रॉब्लम, गो एंड सबमिट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट माय टर्नओवर इन द लास्ट ईयर वाज 10 crore rupees and this year I am expecting and 15 crore rupees, kindly increase my limit. It isn't just an affidavit and undertaking on letterhead ना. Give it to them. आप नहीं दे रहे हो, कंप्लाइंसेस में तकलीफ है, भला है बैंक वालों का कि रेवेन्यू लीकेज निकाल के नहीं डाल दिया तुम्हारे अंदर. सो वी शुड ट्रेन आवर क्लाइंट एज वेल. कहाँ प्रॉब्लम है सर? बोले सब रिन्यूअल आएगा तब दे देंगे. वापिस दे देना. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरिजन अभी बोल रहा हूँ सर, कुछ पॉइंट बताऊंगा, जाके स्टाफ को लिख के रख लीजिए कि शाम को दे दे. अगर आप कॉन्करेंट ऑडिट करें, मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं, सब कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करवा ही लीजिए. क्योंकि मेरे जैसा अगर ऑडिटर गया तो मैं 100% 31 मार्च का बैलेंस शीट पकड़ूंगा, स्टॉक स्टेटमेंट पकड़ूंगा, 9 महीने 10 महीने का रिवर्स कैलकुलेशन करके डीपी निकालूंगा. If the stock statement as on 31st March 2025 is not matching with the financial statement because it is not a company. चलो कंपनी में तो कारो है, कारो भी बहुत कंपनी, स्मॉल कंपनी के लिए कारो लगेगा नहीं. So auditor will not give a comparison of it कि whether there is a different. सर बराबर हूँ ना? कारों में जनरली, हाँ मैं थोड़ा फास्ट बोल सकता हूँ कभी कभी, तो कारों में कंपैरिजन क्या करूँगा मैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट whether there is a gap of more than 5% in the stock statement submitted to the bank and the details shown in the financial statement. स्टॉक और डेटर्स में डिफरेंस है तो आपको रिपोर्ट करना है, दैट्स इट. पर वो कंपनीज के केस में अदर देन कंपनी, और ये कारो भी जिसके लिए एप्लीकेबल है, राइट नाउ द स्मॉल कंपनी डेफिनेशन हैज बीन एनलार्ज्ड, तो अभी तो बहुत सारी कंपनियां निकल जाएगी. तो हमको क्या करना है कि स्टॉक में डिफरेंस देखना है. सर इज देयर इन रिकंसिलेशन एरर इज अलाउड? जो 5% उन्होंने सोचा है कारो में हम भी मान लेंगे, पर 15, 25, 30% का डिफरेंस आता है. और उस दिन मैं डीपी निकालने बैठता हूँ ना, तो डीपी कभी नहीं आती, पर चमत्कारिक रूप से अप्रैल महीने में आ जाती है. हाँ सर, फेब में भी आती है, मार्च अप्रैल में भी आ जाती है, पर वो मार्च की बैलेंस शीट में नहीं आती है. पर मार्च का जब स्टॉक स्टेटमेंट आता है उसमें पता नहीं कहां से आ रही है. सो इट इज फ्रॉड. सर बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं इसको फ्रॉड में फॉल करता हूं. लॉन्ग फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट, LFAR अगर आप स्टेचुरी ब्रांच ऑडिट करेंगे, द सस्पेक्टेड फ्रॉड डेफिनेशन फर्स्टली कवर wrong submission of financial information to the bank is fraud. अगर आपने स्टॉक स्टेटमेंट गलत दिया है, वो सस्पेक्टेड फ्रॉड है. मैं फॉरेंसिक करता हूं. अगर बैंकर, क्योंकि क्या है करना, क्या है यही करना है सर. आपने जो इंफॉर्मेशन सबमिट की है, बैंक रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू. बोरोवर ने जो इंफॉर्मेशन दिया उस पर रिलाई किया है.
करेक्ट. सो ये काम रेवेन्यू लीकेज का निकाल के देख लेने का. अब डीपी यही काम जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करने वाला है वो क्यों ना हम कर लिया जाए. अगर कोई है तरीका तो पता चेक कर लो. दो चीजें हो जाएगी, रेवेन्यू लीकेज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी मैं बोलूंगा आगे, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा. सेकंड, डीपी का प्रॉब्लम खत्म, एनपीए क्लासिफिकेशन नहीं आएगा. सॉरी, मैंने लिखा है रेवेन्यू लीकेज डज नॉट मीन्स इन पॉजिटिव. लोकल रेंट चार्जेस 2 बार लग गए. एक बार क्या हुआ, जब बहुत सारे देयर वाज एन प्रॉब्लम इन सिस्टम. जब क्या हुआ कि सिस्टम हैज नॉट चार्ज द रेवेन्यू लोकल रेंट, तो हम बीइंग एन कॉन्करेंट हमने बोला सर मैन्युअली लगा दीजिए. तो ब्रांच ने मैन्युअली लगा दिए और उसके बाद पता नहीं सेंट्रल ऑफिस ने कुछ वापस रन कर दिया तो सबके साथ लोकल रेंट वापस लग गया. तो अभी ब्रांच वाला बोलता है सर पहले तो 200 अकाउंट में आपने लोकल रेंट लगवा दिए, अब वापस जाने दो ना सर, किसको पता चलेगा, जो आएगा वो वापस लगवा देंगे. Whosoever will come, हम उनका रिवर्स कर देंगे, बाकी 1500 रुपए में क्या फर्क पड़ जाएगा. मैंने कहा सर हाँ रॉन्ग, जो गलत है वो गलत है सर, वापस रिवर्स कर दीजिए. कौन सा वाला, जो मैनुअल वाला कर दीजिए, बिकॉज इट हैज बीन सिस्टम चार्ज बाय सिस्टम. और मैं साइन कर देता हूँ उल्टा कि यस वी हैव वेरीफाइड. कभी कभी तो आजकल रेवेन्यू रिवर्सल सर बहुत प्रॉब्लमेटिक है. आपको पता होगा कोई 2-3 बैंकों का रेवेन्यू रिवर्सल अगर करवाया और इंटरेस्ट रिवर्सल का केस है, तो जब इंटरेस्ट चार्ज हो गया और उसके बाद रेवेन्यू रिवर्सल करवाया होगा तो आपसे साइन करवाएगा. कॉन्करेंट ऑडिट हैज टू सर्टिफाइड वेदर द कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल. मतलब क्या चाहता है तू, मतलब मेरे को ये लगता है उस पेपर पे साइन करना आपको ठीक लगता है क्या. हेलो, यहाँ कोई मतलब आर्टिकल और एम्प्लॉइज भी हैं या सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं. हाँ रेज योर हैंड, मैं तो आपसे ज्यादा डिस्कशन करने के लिए अच्छा रहूंगा इफ समवन इज देयर, क्योंकि आप ही काम करने वाले हो. ठीक है कोई बात नहीं. मैं ये सोचता हूं कि अब आपने ये लिख दिया कि फिक्स डिपॉजिट. एक केस बताते, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. एफडीओडी का अकाउंट था, एफडीओडी का अकाउंट था, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया. किस रेट से, एक्स रेट से. जो रेट लगा रखी वो फिक्स. टेक एन एग्जांपल, एफडी पे रेट थी 6%, गैप था 1% का. अब रेपो रेट घट गई, उसकी वजह से क्या हुआ, 50 पैसा एफडी पे कम हो गया. The rule of bank is whenever there is a change in FD rate, the respective rate in the loan account and OD account should be changed. पर वो लोन था उसको 1.5%, 1.5 भी रखा. मतलब क्या था, 6 + 1 = 7. अभी रेट कितनी होनी चाहिए, 6.5 है. कितनी है, 7. बोरोवर को पता चला रिवर्सल, 1-1.5 साल का रिवर्सल लेके आया. मेरे में तो किसी ने दिया होगा ज्ञान उसको कि मेरे में इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगा, 80,000 रुपए का रिवर्सल मांगा उसने. 10,000 से ज्यादा का रिवर्सल कॉन्करेंट ऑडिटर हैज टू सर्टिफाई. ये एक पॉइंट है. अगर एक अकाउंट में ऐसा हो सकता है तो कितनी एफडीओडी आपकी ब्रांच में हो सकती है जहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. और वहां दे आर मेकिंग अस लाइबल. एंड मुझे फील करवा रहा है कि मैंने ही, मेरे ही आदमी ने ये चेक नहीं किया. वो रिवर्सल तो ठीक है, मैं मान लूंगा कि ये 80,000 रुपए जेन्यून रिवर्सल है, बट मुझे फील करवा रहा है कि क्या, कि मैंने ठीक से चेकिंग नहीं की. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं. टाइम कम है इसलिए मैक्सिमम पॉइंट्स जिस पे मैं बोला आपको कि मैनुअल नहीं है वहाँ बात करेंगे. जनरली मेन सोर्सेस ऑफ इनकम विल बी इंटरेस्ट. चार्जेस क्या क्या है आप ही बोलिए सर, मैं थोड़ा अभी रुकूंगा. व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस एंड इनकम टू द बैंक. जल्दी बोलेंगे तो जल्दी आगे बढ़ जाएंगे सब. प्लीज गो अहेड. हाँ, प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन, लॉकर रेंट, पीनल, इंटरेस्ट. सबसे पहला इंटरेस्ट बड़ा. और बोलिए, सॉरी, मिनिमम बैलेंस चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस और बुक कीपिंग चार्जेस. और बोलिए सर चार्जेस सर्कुलर पड़े हैं. सर बहुत अच्छा है. अगर मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं, जब मैं 5-7 साल पहले कभी चालू किया था ना, तब लगता था यार 90-95 पेज का सर्कुलर कौन पढ़ेगा. बट एक बार आप पढ़ लेंगे ना, 7 साल बाद भी अगर आज मुझे लगता है तो इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स. 95 पेजेस. यहाँ आने से पहले मैंने एक बैंक का चार्जेस सर्कुलर वापस गो थ्रू कर लिया था. बोला यार मैं कुछ छूट तो नहीं जाऊंगा डिस्कस करते टाइम. सो मुझे अचानक एक याद आ गया, टीवी वेटिंग चार्जेस.
हेलो, किसी ने लार्ज कॉर्पोरेट ब्रांचेस का अकाउंट किया, ऑडिट किया है? बड़ी ब्रांचेस नहीं ना। लार्ज कॉर्पोरेट जब अकाउंट होते हैं, टीवी पता है ना सबको? हेलो, TEV, टेक्नो इकोनॉमिक वाइबिलिटी. There is a limit in the every bank where हेलो यस, हर बैंक में एक लिमिट होती है. इस लिमिट से ज़्यादा का अकाउंट अगर लोन प्रोसेस होने वाला है तो इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय सम ऑफ द एजेंसीज अपॉइंटेड बाय द बैंक. ठीक है ना? तो वो एजेंसी क्या करती है, पूरा रिपोर्ट बना देती है. अब वो रिपोर्ट तो बना देगी, पर बैंकर उसको रिलाई ऐसे ही कर लेगा क्या? नो, बैंकर हैज़ इट्स ओन डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड TEV सेल. TEV सेल में वो जाता है, इट रिक्वायर्ड देयर 5 days टाइम. उनके एम्प्लॉय और आदमी लगते हैं, तो उनका चार्जेस लेती है बैंक. कितना रुपया? 2 लाख रुपया. हाँ, 50-100 करोड़ का अकाउंट है, 2 लाख रुपए छोटा ही है. तो 2 लाख रुपए वेटिंग चार्जेस लेती है. ये चार्जेस मैक्सिमम केसेस में भूल जाती है बैंक. द प्रॉब्लम इज TEV सेल कहाँ है? सेंट्रल ऑफिस. उन्होंने रिवेट करके भेज दिया, ब्रांच को बोल दिया कि चार्जेस रिकवर कर लेना. देयर इज नो सिस्टम. और TEV वेट करने के लिए कब होगा? मेरा अकाउंट ही नहीं ओपन हुआ. राइट नाउ द लोन इज बीइंग गेटिंग प्रोसेस्ड. प्रोसेस होने के बाद अकाउंट सैंक्शन होगा, सैंक्शन होने के बाद डिसबर्समेंट होगा, उस दिन जाके चार्जेस लेवी करना है. इन बिटवीन 4 महीने निकल जाएंगे, आप, मैं और ब्रांच सब भूल जाएगा. करेक्ट ना? 2 लाख रुपए का रेवेन्यू है TEV का. नो सर, वो दैट इज प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग चार्जेस 50% इज अपफ्रंट, 50% इज लेटर ऑन. बट TEV का चार्जेस हो सकता है, अगर आपके केस में हो सकता है, बाकी जहां मैंने देखा है, बिकॉज आई एम एंगेज इन द सेकंड साइड एज वेल, प्रोजेक्ट फाइनेंस. ओके, फॉर TEV. Okay, in case of processing charges, I am totally agree with you, because many of the bank take processing charges in advance half, and in after sanction that is 50%. But you are saying it is advanced, then it is fine. बहुत बाकी मैंने I am working with very many of the bank, वो charge नहीं कर रहे हैं. मतलब आज ही मैं एक बात करता हूँ, I am going for this, but they have not taken in advance. पर we should keep in that, ले लिया है तो ठीक है, नहीं लिया तो हमको लेना है. TEV वेटिंग चार्जेस बोला एक मैंने, इसके अलावा TEV चार्जेस अलग है. कभी कभी बैंकर बोलता है कि नहीं, इस केस में TEV हम खुद बनाएंगे. जो TEV एजेंसी को अपॉइंट करना या पैनल वाला है, उससे नहीं करवा के हम खुद बनवाएंगे. बिकॉज वी विल क्रिएट, वी विल डू द एनालिसिस, CMA सब कुछ हम वैलिडेट करेंगे, हम हमारी पूरी रिपोर्ट देके प्रोजेक्ट डिवीजन को दे देंगे. इन दैट केस देयर आर 2 चार्जेस. TEV वेटिंग चार्जेस अलग है और TEV प्रिपरेशन चार्जेस अलग है, दैट इज TEV चार्जेस. कभी कभी उन्होंने क्या सिस्टम बना लिया कि इफ वी आर आवर सेल्फ प्रिपेयरिंग TEV, देन वी विल नॉट टेक अ TEV वेटिंग चार्जेस. सो दैट इज वन थिंग. इफ TEV इज प्रिपेयर्ड बाय आउटसाइडर, वेटिंग चार्जेस लगता है. इफ नॉट, देन द सिंगल TEV चार्जेस लगता है. ठीक है, केयरफुली. सबसे ज्यादा जो अपन ने चार्जेस डिस्कस किए हैं, मेजरली वही चार्जेस हैं. कुछ चार्जेस फॉरेक्स रिलेशन में किसी ने नहीं बोले, LC, BG, commission charges, these are the major revenue where is a manual intervention is actually required. जहाँ कंसेशन बहुत ज़्यादा मिलता है और वहाँ मैनुअल कैलकुलेशन आती है. आजकल फिर भी उसको ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा कर दिया है. स्टिल आई विल पॉइंट इट आउट फ्यू पॉइंट्स वेयर देयर इज अ चांसेस ऑफ रेवेन्यू लीकेज. ओके, मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ऑल्दो इंटरेस्ट की बात करते हैं, टॉपिक में एक एक पॉइंट खड़ा करूँगा, वहाँ क्या क्या मुझे मिस्टेक्स मिल सकती है वो अपन उठाएंगे. इन केस ऑफ इंटरेस्ट जनरली रेवेन्यू लीकेज नहीं मिलेगा अगर सिस्टम में फीडिंग बराबर की है. तो हमको पहली बार जो फीडिंग करनी है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है. पहला, फीडिंग एज पर सैंक्शन नोट हुआ है कि नहीं हुआ है. मान लीजिए सिस्टम के हिसाब से हुआ है. एक एग्जांपल मैंने अभी यहाँ शायद लिखा है कि नहीं है. यस, हियर इट इज. सैंक्शन ROI EBLR plus 8%. If the loan has been sanctioned on 38th of September या 29th of September, but the account has been opened after 15 days, because sanction होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा. डॉक्यूमेंटेशन के बाद डिसबर्सन जब करूंगा तब लोन अकाउंट खोलूंगा, और जब लोन अकाउंट खोलता हूं उस दिन मेरा क्या लगता है, इंटरेस्ट रेट लगता है. और सब्जेक्टिवली 38 सितंबर को MCLR चेंज कर दिया बैंक ने. सबका अटेंशन,
मान लीजिए 38 सितंबर को MCLR था 8%, द बैंक हैज सैंक्शन ए लोन MCLR पर 1%. What is the interest rate for the customer is? हेलो 9%. 38 सितंबर की जगह 1 अक्टूबर को MCLR बदल के 7.90 हो गया, या रिवर्स कर दीजिए 8.10 हो गया. 10 पैसे का MCLR चेंज कर दिया. नाउ व्हाट इज द सैंक्शन रेट इज MCLR प्लस 1%. तो 8.10 प्लस 1%. बोरोवर क्या बोलेगा? सर मेरा सैंक्शन किस रेट से हुआ है? नो. बट सैंक्शन नोट इज एन बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड बोरोवर. 1 साल के लिए आपका रेट फिक्स है सर. अब क्या करेंगे? एज ऑफ नाउ सिस्टम में आप MCLR चेंज नहीं कर सकते, आपको केवल स्प्रेड डालनी है. इट्स कॉल्ड स्प्रेड, करेक्ट ना? स्प्रेड डालनी है तो मैंने स्प्रेड क्या डालूंगा? 1. तो ऑटोमेटिकली रेट क्या आ जाएगी? 8.10, सॉरी 9. वॉट एवर द केस में बी, वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द बोरोवर. हेलो, सॉरी, नो सर. यस सर, ऑन दैट डे व्हेन द सैंक्शन गॉट सैंक्शनड, सर रिवर्स हो जाता तो आप क्या करते? कम करते क्या? सर मैं, बिकॉज आई हैव डिड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट. सैंक्शन इज एन बाइंडिंग एग्रीमेंट. मैं, आप बैंकिंग वहाँ भी चले जाएंगे लिटिगेशन में, वो क्या बोलता है? जिस दिन आपने साइन किया है आपको उस दिन का रेट लगाना पड़ेगा. नाउ यू हैव टू चेंज योर स्प्रेड मैन्युअली फॉर 1 ईयर. बैंक क्या करती है जनरली? आपकी रेट रिकवरी कोई भी नहीं निकालेगा उस केस में, आपको वही करना पड़ता है. मैं बैंक को, मैं यहाँ तक भी एग्री कर रहा हूँ, चलो कर दिया तब तक तो ठीक है. बैंक को क्या करना पड़ेगा? 8.1 प्लस स्प्रेड इज 0.90, इट विल बिकम 9%. नाउ प्रॉब्लम इज नॉट फर्स्ट ईयर, प्रॉब्लम इज फॉर सब्सिक्वेंट ईयर. ये जो 0.90 है ना स्प्रेड, जनरली जब तक रेटिंग बंदे की चेंज नहीं होती है, इंटरनल रेटिंग या एक्सटर्नल रेटिंग, तब तक स्प्रेड रिमेन कांस्टेंट. MCLR अप डाउन करता रहेगा ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल गॉट डन ऑन सो एंड सो डेट, उन्होंने क्या डाला होगा? MCLR प्लस 1%. MCLR ऑटोमेटिकली उस दिन जो होगी सैंक्शन की डेट में, जिस दिन रिन्यूअल डेट डालूंगा ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा. बट व्हाट अबाउट द स्प्रेड? इट रिमेन 0.90. देयर इज एन रेवेन्यू लीकेज. सिस्टम गलत नहीं होता, गार्बेज गो इन गार्बेज. हमने जो मैनुअल डाला है वो ही गलत है. अगर सर का जैसा कहना है, एक पॉइंट है, ही हैज टू एक्सेप्ट. आई एम कॉन्ट्ररी ऑन दैट पॉइंट कि अगर मैं जाके लड़ूंगा, बिकॉज इन दैट केस एवरी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सैंक्शन विल बी चैलेंज्ड बाय मी. मैंने वो भी लिखा है बहुत बार. क्या बोलते हैं बैंक कि सर देयर आर, लास्ट पॉइंट हैज बीन मेंशन दैट द रेवेन्यू, अदर रेवेन्यू कैन बी कलेक्टेड बाय द बैंक. एक छोटा सा पॉइंट डालते थे लास्ट में सैंक्शन नोट में, एनी अदर चार्जेस एज पर द सर्क्यूलर ऑफ द बैंक विल बी लेविड. आई एम फाइटिंग फॉर वन ऑफ द कस्टमर. मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूँ. सिंस 2015 से आज तक का लिटिगेशन चल रहा है. 2015 से लेकर आज तक का द रेवेन्यू ऑफ 2 करोड़ रुपीज किसके लिए? टेक ओवर चार्जेस था. द बैंक हैज टेक ओवर चार्जेस ऑफ 2% एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेटर ऑन इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1%. सैंक्शन नोट में लिखा हुआ था टेक ओवर चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एज एंड व्हेन इट इज लेविड. जब भी होने वाला था. 2013 का सैंक्शन था, मैंने 15 में टेक ओवर करवाया. 13 में जो टेक ओवर चार्जेस था वो 2% था. बट द 2015 द टेक ओवर चार्ज ऑफ द बैंक हैज बीन रिड्यूस्ड एंड गिवन टू 1%. अगर लगेगा तो 1% है. बैंक ने बोला पूरा 2% लगेगा. बिकॉज क्यों? क्यों आपने, इट वॉज टर्म लोन, क्योंकि एवरी ईयर रिन्यूअल तो होना नहीं है. टर्म लोन में लिखा हुआ है 2% charges. The bank has said no, it is levied for 2%. Why? Because it is agreed by you. इनका okay sir. इनका why you have written below? It may be updated based on the latest circular of the bank. If you are yourself is saying कि other terms and condition है, अगर vice versa होता तो क्या करते आप? आप बोलते नहीं सर हमारा पॉलिसी चेंज हो गया, it is mentioned over here. We went to banking ombudsman, got the approval. It has been reduced to 1%. That's why the banking ombudsman says that sanction note is binding agreement between the borrower and me. ये मेरा व्यू है. जब मैंने टेक ओवर की बात की है, मैं टेक ओवर में एक लीकेज बोल देता हूं कभी, बाकी वापस पढ़ूंगा तब तक.
जब भी टेक ओवर चार्जेस है आजकल फॉर स्मॉल एसएमई एमएसएमई देयर इज रिसेंट सर्कुलर हैज केम फॉर एवरीवन दैट दर पहले तो रिटेल लोन के लिए तो टेक ओवर था ही नहीं. इफ इट्स पेड फ्रॉम आउट ऑफ पॉकेट मतलब आउट ऑफ ओन सोर्सेज देयर इज नो टेक ओवर चार्जेस शुड बी लेविड. इन केस ऑफ एमएसएमई सेम एप्लीकेबल. इफ the money has been repaid from own sources, then the bank cannot levy takeover charges on the MSME. Okay, that's fine. अब टेकओवर चार्जेस तो नहीं ले सकती, पर बैंक के पास एक ऑप्शन हमेशा पड़ा रह जाता है. बैंक को स्टार मार्क करके जो नीचे अभी बोला ना, अदर चार्जेस में बी लेविड, उनके सर्विस चार्जेस में आई वेलकम सी राकेश सर, थैंक यू सर. टेकओवर चार्जेस में बैंक ने क्या बोला है, अदर क्लॉज डाला, और अदर क्लॉज में एक पॉइंट लिखा हुआ है. क्या सर, किसी को याद है क्या ऐसा क्या रिकवर कर सकती है? और टेक ओवर चार्जेस नहीं ले सकती है, फिर भी बैंक ह्यूज चार्जेस रिकवर कर सकती है. और इसका हमने बहुत बड़ा बड़ा रेवेन्यू लीकेज निकाल के दिया बैंकर को. वन ऑफ माई नोन हैज रिकवर्ड 1.5 crore rupees इन अ ब्रांच ऑफ 2600 crore rupees. कॉन्करेंट ऑडिट में 1 महीने की रिकवरी निकाली है ऑन दिस पॉइंट. अब प्रॉब्लम ये है कि अकाउंट बंद हो गए. टेक ओवर हो गए ना सर. सर टेक ओवर चार्जेस में एक रूल है, एनी कंसेशन गिवन इन द अकाउंट विल बी वेव्ड एंड रिवर्स्ड सिंस ओपनिंग ऑफ द अकाउंट. अगर आपने टेक ओवर करवाया तो जो कंसेशन विद इन 2 ईयर, जनरली इट एप्लीकेबल फॉर 2 और 3 ईयर, कि अगर आपने 2 या 3 साल में टेक ओवर करवा लिया, भले खुद से ही ले लिया, अकाउंट क्लोज भी कर दिया, तो एनी कंसेशन गिवन इन द अकाउंट, आज कौन से अकाउंट में कंसेशन नहीं रहती? कार्ड रेट तो होती है 10.5%, करेक्ट ना? बैंक क्या करती है आजकल, बैंक इज वर्किंग ऑन इंटरेस्ट ऑन कार्ड रेट बेसिस, कि कार्ड रेट माइनस स्प्रेड, नेगेटिव रिस्पॉन्ड करती है कि आपको इतना कंसेशन 2% का, EBLR प्लस 2%, स्प्रेड प्लस 2%, माइनस 3%, रिजल्टिंग कमिंग टू 8.5%. सो जो पीछे वाला माइनस जो लगा हुआ है ना, वो रिवर्स करना पड़ेगा. ये एक कंसेशन है. दूसरा कंसेशन और बता देता हूँ. कुछ बैंक है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पे चार्जेस लगाती है बट वेव करती है. हेलो हेलो, करेक्ट ना? मुझे एक पता है, द लार्जेस्ट बैंक ऑफ कंट्री नॉट लेवीड एनी चार्जेस ऑन एनी ट्रांजेक्शन डूइंग ऑन ऑनलाइन पोर्टल. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो नहीं करती है, मैं उसका बोल रहा हूँ. कोई करती है उसका नाम नहीं लूंगा, करती है, उनके अंदर वेवर मांगा जाता है कि RTGS NEFT चार्जेस में वेवर. कौन जाता है आजकल? नहीं जाता है ना. 5 रुपए प्लस 90 पैसा GST का मिनिमम चार्जेस हर ट्रांजेक्शन पे लगता है. एवरी ट्रांजेक्शन it goes into lakhs of rupees. So that's why the bigger account get concession into that. So वो concession जो दिया है ना, वापस मांग लो. बड़ा रेवेन्यू लीकेज है. तो पहले ही ब्रांच वाले, हम जिस ब्रांच में ऑडिट करते हैं ना, हमारे 2 रूल बना के रखे बैंकर ने. वो क्या बोलता है, सर 2 काम कर लिया करो. डिसबर्समेंट करने के पहले फाइल चेक कर लिया करो, करने के बाद मगजमारी नहीं चाहिए. आप बोलोगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं कर पाऊंगा. बिकॉज ब्रांच मैनेजर इज गुड, डोंट वांट टू टेक, ही इज एन AGM, सेट दैट सर आप देख लिया करो अकाउंट, 2 दिन बाद सेंक्शन करेंगे. जो ही कोई नया सेंक्शन आता है डिसबर्समेंट के पहले बुला लेता है. सेकंड, कोई टेक ओवर या ट्रांसफर क्लोज होने वाला, सर चेक कर लो, कोई छूट गया है तो पहले कलेक्ट कर लेंगे. सो दिस इज वेरी क्लियर थिंग्स. अब एक और बात बताता हूँ चार्जेस की. जहां मैंने बोला ना कंसेशन चार्जेस, ये कंसेशन में आपको एक प्रॉब्लम मिलेगा. जो भी वेवर ऑफ RTGS NEFT और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चार्जेस है ना, फर्स्ट ईयर में तो कोई छोटे छोटे अकाउंट की बात कर रहा हूं सर. रिकॉर्डिंग है इस लेक्चर की? हेलो, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड? हाँ, देन आई विल नॉट टेक द नेम. सो एक बैंक है, उनके अंदर चार्जेस में क्या करता है, वो कस्टमर फर्स्ट टाइम लेने के लिए तो चार्जेस वेव कर देता है. सेकेंड ईयर से कभी वेवर सेंक्शन नोट में आता ही नहीं. दे हैव टू सीक अ वेवर फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 2 करोड़ से ज़्यादा पे चेंज हो जाती है. अप टू 2 करोड़ दे हैव द ओन पावर, अदरवाइज ऊपर जाता है. उनको सेपरेटली कंसेशन देना, मांगना पड़ता है. और जब नहीं मांगा ना फर्स्ट ईयर में तो आ जाता है, सेकेंड बार में आता नहीं है. बट द कंसेशन इन द अकाउंट फॉर द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, हेलो, कंटिन्यू. वहां रेवेन्यू लीकेज निकलता है. बिना रिकॉर्डिंग के बाद में बात करेंगे कौन है. अगर आप उन बैंक का ऑडिट करते हो, प्लीज टेक केयर अबाउट इट. बहुत बड़ा रेवेन्यू लीकेज निकलता है वहां.
कमिटमेंट चार्जेस लगाए हैं किसी ने? हमने एक लिस्टेड कंपनी पे कमिटमेंट चार्जेस लगा दिया, सर लगेगा। अब प्रॉब्लम है कि आजकल उन्होंने एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला, आरबीआई सेज दैट मिनिमम 60% ऑफ द लोन फैसिलिटी शुड बी, और उन्होंने एक और तरीका निकाल दिया, WCTL दे दीजिए, सो दैट बैंक के लिए कि 100 करोड़ रुपए आपके लिए लिखा हुआ है, आप यूज ही नहीं करते हो, मेरे लिए तो कैपिटल रिजर्व लग रहा है, सो राइट नाउ दे हैव गिवन एन WCDL, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन फॉर 90 डेज, सो 60% यूटिलाइजेशन हो जाता है। फिर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन लिस्टेड कंपनी ने क्या किया, दे हैव टेकन अ मल्टीपल फैसिलिटी, कैश रिच कंपनी AA रेटेड है, तो वो क्या फैसिलिटी ले ली, यूज नहीं कर रहा था। नाउ माई बैंक इज द लार्जेस्ट बैंक, छोड़ती नहीं कंप्लाइंसेज में, बोला कि सर है वो तो लगाऊंगा, जाए तो जाए। मैंने बोला हाँ लगाना है, तो उसने भी ठोक दिया, बोले लड़े तो लड़े। मैं मेरे पास, सर बैंकर को आप अगर जब स्ट्रांगली बोलते हो कि सर मैं तो लगूंगा, सर आप लिख के दे दो कि नहीं लगाना है, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप मत करना मेरी रिपोर्ट में, मेरी डाल दूंगा, रिकवर मत करना, करेगा बैंकर? नहीं, जब रिके जाएगा तो माथे हमारे ही पड़ने वाला है। सर डोंट लीव, मोहब्बत नहीं करने का बैंकर से, बहुत सिंपल सी बात है सर। सो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, बहुत क्लैरिटी के साथ है सर। सर प्यार मोहब्बत शाम को चाय पियेंगे साथ में, पर जो पॉइंटर है आई एम विद यू ओनली, आप रिकवर कर लेंगे तो मैं रिपोर्ट में नहीं डालूंगा, इतना जरूर कर दूंगा। बीइंग एन कॉन्करेंट ऑडिटर मैं हर बार बोलता हूँ, 5 दिन का समय देता हूँ बैंकर को। मेरी स्टाफ झगड़ती है, बोले सर प्रेशर है बहुत ज्यादा, मैंने कहा सर आप देख लीजिए, 7 तारीख को रिपोर्ट होने वाली है, 5 तारीख तक आपके पास समय है, कर देंगे तो ठीक है, मेरे स्टाफ बिना मुझे पूछे डाल देगी। सो वी शुड डू लाइक दैट ओनली। मूविंग फर्दर, प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस में 1-2 पॉइंट बता देता हूं मैं फटाफट से, जनरली लेवी हो जाता है। ब्रोकन पीरियड का प्रोसेसिंग चार्जेस, दिस इज द बिगर प्रॉब्लम। हेलो, ब्रोकन पीरियड का प्रोसेसिंग फीस। अब कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो एनुअल टाइम पे प्रोसेसिंग फीस ओनली ओरिजिनल डेट ऑफ सैंक्शन पे चार्ज करे जा रहे हैं। हेलो, आपने देखा होगा ना, उनका कोई सिस्टम ही नहीं है मैन्युअली। One account got sanctioned on 1st April 2014. Every year, even the limit is increased from 10 crore to 100 crore rupees. वो 1 अप्रैल 2000 जो भी डेट आएगा उस दिन क्या करेगा, लगा देगा, कितना, जितने लास्ट टाइम पे है। पर सोचिए उसके बाद अगर सैंक्शन में इन्हांसमेंट हो गया, उसका क्या करोगे? ऑन द, या प्लीज, थैंक यू। 1 अप्रैल 2014 को सैंक्शन किया था 10 करोड़ रुपए, बढ़ के आज की डेट में हो गया 40 करोड़ रुपए। रिन्यूअल डालेगा, लास्ट रिन्यूअल था वो 40 करोड़ का था, 1 अप्रैल 2024 पे खड़ा था मैं, उस दिन 40 करोड़ का डाल दिया। नाउ ऑन आई एम सिटिंग ऑन नेक्स्ट 30 सितंबर को उसका क्या किया, रिन्यूअल का मैं एनाउंसमेंट कर दिया। मैं क्या बोला था, 1 अप्रैल वाज नॉट डेट ऑफ रिन्यूअल, लास्ट डेट 1 अप्रैल 2024 ऑटोमेटिक सिस्टम, दैट इज ओरिजिनल डेट ऑफ सैंक्शन था, दैट कॉल्ड सिस्टम डेट ऑफ सैंक्शन। नाउ माय लास्ट रिन्यूअल वाज डन, टेक एन एग्जांपल 38 सितंबर 2023, 2023 में हुआ, 30 सितंबर 2024 को क्या होने वाला था, रिन्यूअल ड्यू। मेरा प्रोसेसिंग चार्जेस कब लग गया, इन बिटवीन 1 अप्रैल 2024 को। मैंने रिन्यूअल में यानी सितंबर में 6 महीने के बाद लिमिट एनहांसमेंट का रिक्वेस्ट डाल दिया 40 से 50 करोड़ रुपए। कैलकुलेशन में यहां प्रॉब्लम आता है। तो दैट इज द पॉइंट वेयर द रेवेन्यू लीकेज इज केम। ब्रोकन पीरियड। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट रिव्यू। सिस्टम नेवर चार्ज शॉर्ट रिन्यूअल। 3 महीने का जो पीरियड बोलते हैं उसको ग्रेस पीरियड जो भी आप बोलेंगे, इट इज नॉट एन, दे डू नॉट चार्ज फॉर दैट पीरियड। सर प्रॉब्लम है, मैं नाम अभी भी बैंक का ले रहा हूं, लार्जेस्ट बैंक, उनके द बैंक सेज सर हमारा सिस्टम हम जो ही रिन्यूअल करेंगे ना ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर देगा फॉर ब्रोकन पीरियड एज वेल एज नेक्स्ट 1 ईयर। हेलो, आर यू एग्री विद मी? सर प्रॉब्लम क्या आती है, मैं अभी 31 मार्च को खड़ा हूं, फिर क्या करने का? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं लेंगे ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्जेस। 30th ऑफ दिसंबर मान लीजिए, क्योंकि 6 महीने चल नहीं सकता, 30th ऑफ दिसंबर वॉज डेट ऑफ रिन्यूअल, यू हैव गिवन एन शॉर्ट रिव्यू, आपने प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं किया, आई एम सिटिंग ऑन 31st ऑफ मार्च, योर अकाउंट हैज 6 मंथ, यू कैन डू रिव्यू अप टू 31st ऑफ मार्च। फास्ट तो नहीं हूं ना?
ठीक है, 31 मार्च तक रिन्यूअल कर सकता हूं मैं प्रोसेसिंग चार्जेस। मैं भी मानता हूं कि बैंक का नुकसान क्या है, अल्टीमेटली सिस्टम इज गोइंग टू चार्ज ऑन 38th of March when I am going to do the sanction for a broken period as well as next 1 year. Is it correct? ये होता ही होता है, कोई नहीं मानने वाला। अगर मैं वहां उस बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट चला गया, मैं उसमें एमओसी डाल के आऊंगा। क्यों डालूंगा? हाँ, मेरे I am doing an audit of that financial statement, whether revenue has correctly recognized or not. That is my point. सर आपको जो करना है मैन्युअली रिवर्स करना है कर दीजिएगा, बट एज ऑफ डेट 31 मार्च को आप में इसमें चार्जेस रिकवर करना पड़ेगा। ये तो हो गया ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट, शॉर्ट रिव्यू इंटरेस्ट। अब कुछ बैंकों के सर्कुलर में आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम का जो चार्जेस है वहां तक तो ठीक है, इफ देयर इज एन शॉर्ट रिव्यू कैन बी डन फॉर, हेलो, शॉर्ट रिव्यू कैन बी डन 2 times for each time 3 months, but the limit has to be renewed within 180 days from the date of original expiry, even if whether short review is marked or not, otherwise account got become NPA, टेक्निकल नेचर बन जाएगा। अब मान लीजिए क्या बोल रहा मैं, बैंकों का एक कुछ, all 3 banks I know, I have name, first renewal, first short review will have a same processing charges, but in case of second short review they charge 1.5% of processing charges, मतलब 150% चार्ज करते हैं। अब यहां प्रॉब्लम क्या आती है, पहला एग्जांपल मिला 31 मार्च का प्रॉब्लम है। अब मैं 31 मार्च का नहीं, अब इन बिटवीन आ जाता हूं। 38th of June was the expiry, hello, 38th June was expiry, the account got short reviewed for 1 month, 1 quarter, 90 days, that is 30th of September. The financial statement of the borrower was not prepared. The borrower has requested to give the extension of another 3 months so that the financial statement can be prepared and submitted to the bank. Because of regular reason 30th of September को financial नहीं बने होंगे, उन्होंने बोला कि 3 महीने का एक एक्सटेंशन और दे दीजिए, बैंक ने दे दिया, बैंक ने प्रोसेसिंग चीज नहीं चार्ज किया, यह कह के कि ब्रोकन पीरियड का प्रोसेसिंग चार्जेस जब मैं 30 दिसंबर को पूरा सेंक्शन करूंगा तब 6 महीने का पहले का लगा देगा, 1 साल बाद का लगा देगा, कोई रेवेन्यू लीकेज आने नहीं वाला, कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं आने वाला। वो बोलेगा 30 जून को सर इंस्पेक्शन होके गया इंटरनल, आप और मैं दोनों हैं, चेक कर लेना। मान जाऊंगा क्या? मानूंगा क्या? चलो मान भी जाओ, जो लिमिट है उस पर 3 महीने का 50% जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिकवरी नहीं हुआ है। हेलो, सर्कुलर सेज फॉर द सेकंड शॉर्ट रिव्यू द चार्जेस शुड बी लेविड 150% ऑफ ओरिजिनल चार्जेस। तो अगर प्रोसेसिंग पैसा 0.35% था, इट शुड बी नाउ 150% ऑफ 0.35, दैट इज 0.427। हेलो, ये रेवेन्यू लीकेज बड़ा निकलता है और इंटरनल ऑडिटर आके इसी को पकड़ता है कि किस किस अकाउंट का शॉर्ट रिव्यू हुआ है और कितनी बार हुआ है। कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है सर। रेवेन्यू लीकेज इज वेरी इजी, हमको उल्टा चलने का कि क्या क्या करने का। अब इंटरेस्ट रेट की बात करा था, एक पॉइंट भूल गया सर, किन किन एमएसओडी है, एमएसओडी आता है ना, लोन बैलेंस फाइल, आइदर वी कॉल इट एमएसओडी, लोन बैलेंस फाइल, वॉट एवर के लिए, जिन जिन अकाउंट में एक्सटर्नल रेटिंग है, आंख बंद करके उसमें रेवेन्यू लीकेज निकलेगा। द रीजन इज बैंक हैज अपडेटेड द इंटरनल रेटिंग बट नॉट एक्सटर्नल रेटिंग। अगर एक भी नॉच का डिफरेंस आ गया 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है बैंक का। हेलो, सिस्टम चार्ज बराबर करता है, बैंकर भी बराबर बोलता है, सिस्टम में डेटा तो बराबर डालना पड़ेगा। कहां से लेना है सर? हम हर बार स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाएं या कॉन्करेंट में, स्टैट्यूटरी में तो 100% इसीलिए कर लेते हैं कि ताकि रेवेन्यू लीकेज का काम खत्म हो जाए। 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए निकल जाएगा, अपना काम हो जाएगा। लगेगा ना ब्रांच को कि काम किया है, मेरी फीस तो रिकवर करवा के दे दी अपन ने। हेलो, ब्रांच का फीस रिकवर हो गया। जिन जिन अकाउंट में एक्सटर्नल रेटिंग है फिल्टर मारो, बाकी में एनए लिखा होगा, जिनमें एनए उनको हटा दो, 5-7 अकाउंट निकल के आ जाएंगे। जो बैंक फिनेकल यूज करता है उनका एमएसओडी और 31 मार्च का रिपोर्ट आता है, बहुत शानदार रिपोर्ट है, उसको निकालो, फिल्टर करो, एक्सटर्नल रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग में फिल्टर लगाओ, एनए हटा दो, बाकी के अकाउंट, जाके 5 मिनट लगेगा, स्टाफ को बोलो कंट्रोल फाइंड कर गूगल पे, नाम लिखने का कंपनी XYZ लिमिटेड, एक्सटर्नल रेटिंग, तुरंत प्रभाव से लास्ट वाला रेटिंग आ जाएगा गूगल पे, बिकॉज देयर आर 6 रेटिंग एजेंसी, एवरी रेटिंग एजेंसी हैज टू अपडेटेड देयर रेटिंग ऑन रेगुलर इंटरवल ऑन द पब्लिक पोर्टल। हो गया काम।
अगर आपको लगता है कि लास्ट रेटिंग में से वहीं दिखेगा, कहीं जाना नहीं, वहीं देखना लास्ट और नाउ, इज देयर एनी चेंज? हो गया का? दिस इज अ रेटिंग व्हेन द रेटिंग ऑफ इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल. ये प्रॉब्लम इंटरनल रेटिंग में भी होती है. व्हेनेवर देयर इज अ सैंक्शन, देयर इज अ चेंज इन इंटरनल रेटिंग. वो इंटरनल रेटिंग बैंक कभी बोलता ही नहीं है सैंक्शन नेट में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाली है. एग्जाम्पल है, मैं नाम नहीं लूंगा, XYZ 6, XYZ 1 2 3 4 5 6, 4 रेटिंग है उसकी, ठीक है ना. पहले 4 में फॉल करता था, जनरली 3 और 4 में करता है. अचानक से फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई. अगर उल्टा देख लो सर, इफ देयर इज अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक कंपनी, जाके चेक करो उसकी रेटिंग बदल गई होगी. रेटिंग बदल गई तो सिस्टम में अपडेट ही नहीं किया होगा, डला होगा. बैंक नीड नॉट टू अपडेट देयर इंटरेस्ट रेट. मैंने 2 बात पहले भी बोली है. स्प्रेड कार्ड रेट इज ऑलरेडी फिटेड इन द सिस्टम. स्प्रेड चेंज करना है, स्प्रेड किससे चेंज होता है? दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल रेटिंग. अगर 25 करोड़ से छोटा अकाउंट है तो इंटरनल रेटिंग, डिपेंडिंग ऑन द लिमिट, बैंक टू बैंक. 25 से छोटा है तो इंटरनल, 25 से ज्यादा है तो एक्सटर्नल. अगर मेरी रेटिंग चेंज हो गई तो बैंक क्या, सैंक्शन नेट में द एप्लीकेबल रेट शुड बी अपडेटेड इन द सिस्टम बेस्ड ऑन द इंटरनल रेटिंग गिवन बाय द बैंक. XYZ 4 थी, अब 5 हो गई, 2% बढ़ाना था, वो स्प्रेड चेंज नहीं किया. वो बढ़ाना भी नहीं था, केवल रेटिंग ही अपडेट करनी थी. अब द प्रॉब्लम इज वन मोर बिगर. मेरे क्लाइंट के लिए हमको झगड़ना पड़ा, ऑल्दो हम हारे. पहले जीतने का बोला ना, अब हारने की भी बताता हूं. सर 30th of October, that bank particularly has to do the rating of all account based on the latest financial statement. Hello, every bank has to do it. 30th of September, whatever case is, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे 6 महीने के अंदर अंदर आपको रेटिंग करना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा. अब मेरे क्लाइंट ने क्या किया, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट हुआ तो टैक्स ऑडिट ही लेट हुई. 38 सितंबर की जगह 38 दिसंबर चले गया और उसने बैंक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया इन द मंथ ऑफ February. इट्स फाइन, कोई बात नहीं. पेनल इंटरेस्ट तो ठीक है, बैंक ने जान पहचान का लगाया कि नहीं लगाया. अब उन्होंने क्या किया, उस दिन जाके उनका रेटिंग डाउन हुआ एक नॉच. अब जब रेटिंग डाउन होता है ना, तो दे अपडेटेड फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव, दैट इज फ्रॉम डेट ऑफ 1st of October 2025, वॉट एवर द केस में बी डेट. जो 1 अक्टूबर की डेट है ना, 5 महीने का इंटरेस्ट 2% की दिन में एक ही दिन डाल दिया. जो इंटरेस्ट किसी बंदे का 40 लाख रुपए आता था ना, 1.25 करोड़ रुपए रिकवरी करवा दिया. क्योंकि रेट क्या थी, 8 8.5%. 5 महीने 2% की रेट पे बराबर पैसा, 10.5 11% 10% रिकवरी हो गया और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट किया. हेलो, सो ये हमारी गलती है. हमने क्या नहीं किया, टाइमली सबमिशन हमने नहीं किया. और हमारा ऑडिटर वहाँ भाईबंद वो काम कर लेता तो शायद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, या उस दिन मैं कंसेशन मांग लेता बैंक से. ऑल्दो द रीजन ऑफ रिडक्शन इन रेटिंग वाज जेन्युइन बिकॉज द बोरोवर वाज एंगेज इन गवर्नमेंट बिजनेस और उसका पेमेंट लेट आया, इसकी वजह से टर्नओवर कम घुमा. करेक्ट ना? हेलो, सॉरी, सेम रिवर्सल विल बी डन सर. यस सर, बहुत फिक्स है. 1 2 3 4 5 6 हर में रेट है, स्प्रेड डिसाइडेड है. स्प्रेड में ऑटोमेटिकली कंसेशन बढ़ जाता है. मेरे लिए फायदा है सर. इफ लास्ट ईयर आई वाज बैड बट नाउ आई एम परफॉर्मिंग वेरी वेल, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया, मेरी सेल्स बढ़ गई, तो मेरा रेशियो ऑटोमेटिक रेटिंग बढ़ जाएगी. एंड इट इज बढ़ गया तो मेरे लिए तो बढ़िया है. सो फॉर आवर क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के सजेस्ट भी करना चाहिए. इसी बहाने कंसल्टेंसी फीस मिल जाएगी, ऑडिट का तो कम मिलता है. हेलो सर, हमको ना, मेरा एक वन ऑफ माई नोन फ्रेंड हैज कॉल्ड मी, बोले रोहित यू आर नॉट इनटू बिजनेस की बात करते हैं, यू आर नॉट इनटू IPO ना. इनका यस नो. बोले रोहित तेरी कोई भी बैलेंस शीट ऐसी हो जिसमें 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिटेबिलिटी दिखता हो, उस बैलेंस शीट के 2 पेज मेरे को भेज दिया कर. बोला यार मेरे पास टाइम नहीं है बिकॉज आई एम एंगेज इनटू बैंकिंग इंडस्ट्री, माय होल इंडस्ट्री इज बैंकिंग, आइदर इट इज फ्रॉम प्रोजेक्ट इनसाइडर और ऑडिटिंग. बोला यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जाना नहीं चाहता. बोले क्लाइंट तो है ना, प्रोजेक्ट फाइनेंस जहाँ नहीं सेट होता वहाँ IPO दिलाएंगे. मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा. बोले कुछ नहीं करने का. बोले तेरे को 2 पेज बैलेंस शीट के मुझे दे देने का जहाँ 10 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है. हो गया काम ना. सो दिस इज एन सिनर्जी बेनिफिट. ये एडवांटेज है सर. क्यों बता दिया कि हम आप भी एक ग्राउंड ऑफ सर्कल में ये काम कर सकते हैं सर, बिकॉज वी कांट प्रोवाइड द होल ऑफ द सर्विसेज. और आजकल इतने स्टाफ अच्छे मिल नहीं रहे, मिल रहे हैं तो रोटेशन इतना ज़्यादा है.
ऑल्दो वॉट एवर द कंपनी, अगर बिग फोर है तो भी और हमारी है तो भी, सब में रोटेशन है. सो वी शुड डू सम सिनर्जी सो दैट द एवरी वर्क शुड रिमेन विद अस ओनली. इट इज जस्ट एन सजेशन फ्रॉम माई साइड. एडॉक प्रोसेसिंग चार्ज दिया. सेकंड शॉर्ट रिव्यू आया, मुझे याद ही नहीं था, मैंने लिखा है, रेड में लिखा है, सेकंड शॉर्ट रिव्यू शैल बी चार्ज फॉर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और रिन्यूअल चार्जेस. यस, ये रिकवरी ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेस 50% एट द टाइम ऑफ सैंक्शन एंड 50% एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन डिपेंडिंग ऑन रेस्पेक्टिव बैंक पॉलिसी. ये नहीं होता है. सर ने बोला ना अभी, अच्छा बताया कि सर हमने तो दे दिया है, ये बहुत बैंकों ने रिकवरी नहीं किया. मैं तो सर ये तो सैंक्शन की बात बाद में, इन प्रिंसिपल सैंक्शन सुना है ना सर? हेलो, इन प्रिंसिपल सुना है ना? बैंक चार्ज नाउ. सेंट्रल ऑफिस से जब इन प्रिंसिपल आता है तो उसमें लिखा हुआ है कि द बैंक शुड रिकवर अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज फॉर द इन प्रिंसिपल सैंक्शन बिफोर गिविंग एनी एडवाइस टू द बोरोवर. पर ब्रांच मैनेजर क्या कहता है, ठीक है ना सर सैंक्शन होने ही वाला है, पर कितने इन प्रिंसिपल सैंक्शन में कन्वर्ट होते हैं सर? हेलो, 10 में से 2. बैंक ने प्रोसेसिंग तो किया ना, 2 लाख रुपए लेना चाहिए था, तभी लेटर देना चाहिए था. क्योंकि वो बोरोवर क्या करता है, हमारे और आप और हम वही करते हैं ना कि ये दिखा के दूसरे से बोले भाई 8.5 में मिल रहा है. हेलो, सो 2 लाख रुपए बैंक के लिए रिकवरी है कि इफ एनी इन प्रिंसिपल प्रपोजल, आप बैंक में बैठे हैं, ब्रांच में बैठे हैं, कितने प्रपोजल जा रहे हैं सेंट्रल ऑफिस से और कितनों में इन प्रिंसिपल आ गया है, बैंक हैज द लिस्ट वेदर चेक इट इज वेदर. और 2-2 लाख रुपए का अमाउंट है सर, मिनिमम अमाउंट है. दिस इज बैंक, वन बैंक इज चार्ज 5 लाख रुपीज ऑन 50 करोड़ एंड अबाउ, और अपफ्रंट है, लेटर देने से पहले देना पड़ेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. शॉर्ट रिव्यू, सिस्टम जनरेटेड रिन्यूअल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जनरली ठीक है. एक लोन, टर्म लोन रिन्यूअल चार्जेस द वन ऑफ द मेजर पॉइंट विच हैज केम इनटू द पिक्चर रिसेंटली. एक इंटरनल ऑडिटर के साथ बैठा था, बोले रोहित भाई बहुत सारे जने टर्म लोन रिन्यूअल चार्जेस नहीं देखते हैं, बिकॉज जनरली इट हैपेंस इज टर्नओवर में अपफ्रंट फीस चार्ज कर देते हैं 1%, रिन्यूअल चार्जेस नहीं है. बट नाउ बिकॉज ऑफ द KYC और RBI गाइडलाइंस, बैंकर सेज एवरी ईयर द टर्नओवर शैल बी रिव्यूड. उनका रिव्यू का पर्पस बहुत सिंपल है, 3 चीजें चाहिए. वेदर ऑपरेशन इज देयर. रिव्यू का पर्पस क्या है ना, कोई अकाउंट 5 साल पहले खुला है, कोई देखने भी नहीं जाता है. हेलो, तो क्या चाहिए कि भाई लेटेस्ट KYC ले लीजिए, एक विजिट रिपोर्ट लगा दीजिए और रिन्यूअल कर दीजिए. रेटिंग चेंज हुई तो डाल दीजिए. जनरली टर्म लोन में चेंज नहीं होगा, पर स्टिल अब वो एक उस सैंक्शन का भी 5,000 रुपये बैंक चार्ज करती है. और अपने अकाउंट बैंकों में 100-200 टर्म लोन होंगे कम से कम, क्योंकि बैंक कब देखता है, देयर इज वन सेइंग इन माय ओपिनियन, देयर इज ओनली सैंक्शन नॉट मॉनिटरिंग. मैं बैंकर को खुद ही बोलता हूँ, सर हमारे बैंक में सैंक्शन होता है, मॉनिटरिंग आप, मैं, 3 बैंक 4 आदमी को बैठा के रखा है. जब तक टर्म लोन चल रहे हैं कौन देखने वाला है, सब बराबर चल रहा है, रिकवरी आ रही, EMI आ रही, सब कुछ ठीक है, कोई देखने तक भी नहीं जा रहा ऐसे में जब तक नहीं आएगा. तो हमारा ये काम है कि अगर टर्म लोन एक बार सर्विस चार्जेस का सर्कुलर पढ़ लिया जाए और उसमें बोलना है कि टर्म लोन रिन्यूअल चार्जेस है, तो हर अकाउंट में लगना चाहिए. मेरे को एक बैंक का रेवेन्यू ऑडिट मिला था, तो ऐसे ही चले गए, मैं चले गया बिकॉज आई वांट टू मीट लार्ज ब्रांचेस थी, तो मैं बोला चलो आई विल मीट एटलीस्ट विद द ब्रांच हेड. तो निकाला तो वहाँ ये रिन्यूअल चार्जेस मिला और ह्यूज अमाउंट. फिर खुद बैंक वालों ने बोला सर 5-25 रिपोर्ट कर दीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए. मैं बोला सर फीस तो रिकवर करवा दी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सर व्हाट टाइम आई हैव सर, शैल आई कंटिन्यू फॉर 10 मिनट्स? हेलो, आपकी परमिशन? थैंक सॉरी, कुछ 2-3 स्लाइड बची मेरे पास. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. मुझे लगता है कि मैं, ये पता सबको है, पर ओके पता सबको है, पर हम क्या करते हैं कि लेवी मतलब भूल जाते हैं. लीड बैंकर चार्जेस, मैंने क्या बोला था आपको, सिस्टम के अलावा वाले चार्जेस की बात करूंगा. लीड बैंकर चार्जेस, अगर आपके बैंक में ब्रांच में कोई भी ऐसा कंसोर्टियम अकाउंट है तो लीड बैंकर चार्जेस लगेगा, इतना ही बोलूंगा. मिनिमम 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए का फीस क्वार्टरली मीटिंग का लगता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट. कहीं 1 लाख क्वार्टरली लगता है या कहीं 2 लाख एनुअली लग जाएगा. वॉट एवर द चार्जेस, वेदर इट हैज बीन रिकवर्ड मैन्युअली है, किसी को याद नहीं रहता. नेक्स्ट इज सोलवेंसी सर्टिफिकेट. एक चार्ज क्या लगता है, सोलवेंसी का चार्जेस कितना लगता है? किसी ने किसी क्लाइंट के लिए मंगवाया? हेलो, ये इतना बड़ा है क्या कि मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ? हेलो हेलो, नहीं पता है ना? मिनिमम 25,000 रुपए. एक लेटर है कि हाँ इस बोरोवर की इतनी कैपेसिटी है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, बाहर जाके फायदेगा कि क्या करेगा वो भी नहीं पता.
but the solvency certificate required minimum 25,000 rupees fees depending on the quantum जितने का आप बना रहे हो. So आप कैसे पता चलेगा कि solvency दिया? ब्रांच मैनेजर ने एक लेटर बना के दे दिया, उसकी ओफी कॉपी रखी कि नहीं रखी वो देख लो. अगर फाइल में आपको कहीं भी solvency certificate, ये सब चीज़ें आपकी नहीं है, it is of your staff. I will share this PPT. पर आपको लगता है कि ये स्टाफ को सर फाइल को जब पन्ने पलट रहे हैं ना तब सॉल्वेंसी दिख जाए ना, तुरंत जाके बोलो कि अकाउंट में जाके देख इस दिन का चार्जेस रिकवरी किया कि नहीं किया है. 25,000 रुपये का रिकवरी है सर. और सॉल्वेंसी जब जिस भी क्लाइंट को ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन में एंगेज्ड है, उसमें एक नहीं साल में 10 बार सॉल्वेंसी दिया होगा, क्योंकि 10 बार नहीं 4 बार ही दिया होगा, क्वार्टरली एक क्वार्टर के लिए वैलिड है वो, तो एटलीस्ट 4 बार तो सॉल्वेंसी दिया होगा. पर कभी कभी क्या होता है, मैं चार्जेस ज़्यादा लगती है इसलिए पहले बनवा दिया 5 करोड़ का, पर नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूँ तो मैं 100 करोड़ का या 50-25 करोड़ का सॉल्वेंसी चाहिए. इन दैट केस द चार्जेस विल बी डिफर. ठीक है. हाँ, एस्क्रो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस सिस्टम चार्ज नहीं करता एक्चुअली, है इट इज़ ए मैनुअल चार्जेस. अगर आप कंस्ट्रक्शन में हो, एस्क्रो अकाउंट करेक्ट ना, ठीक है, एस्क्रो का चार्जेस आई विल नॉट, नो ड्यू सर्टिफिकेट, बैलेंस कंफर्मेशन, ठीक है, एनएससी बीएससी मार्केटिंग, टफ की एप्लीकेशन का चार्जेस 2,500-3,000 रुपये है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. एक लिखा हुआ है रिकॉर्ड, ये क्यों चार्जेस है कि प्रॉपर रजिस्टर्ड अगर है नहीं अपने पास तो हमको मैन्युअली अकाउंट वाइज देखना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट इज एक्सपायर्ड बीजी चार्जेस ऑल्सो कलेक्ट सम ऑफ द बैंक. बीजी, हेलो, देयर इज 2 टाइप ऑफ बीजी, ओपन एंड ऑपरेटिव, एक्सपायर्ड एंड नॉट क्लोज. एक्सपायर्ड एंड क्लोज क्या डिफरेंस है? हेलो, perfectly fine sir, perfectly fine. Expired and closed मतलब the bank can closed an BG only and only the original bank guarantee has been received to the bank, then only it can be closed. Otherwise the bank will reverse it and keep it pending. अब उन केसेस में चार्जेस लगते हैं, सिस्टम चार्ज नहीं करता है. अब ये कैसा होता है कि जनरली आज राइट नाउ द बैंकर हैज फॉलोड अ प्रोसेस सेंडिंग ए लेटर टू द कंसर्न पार्टी. जब मेरी बीजी एक्सपायर्ड हो जाती है तो मैं 2 लेटर 3 लेटर आरबीआई ने दिया है, पर वो अभी भी डिबेटेबल इशू मेरे हिसाब से. तो बीजी क्लोज करने का एक तरीका है कि ओरिजिनल, बिकॉज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नेवर रिटर्न द ओरिजिनल बैंक गारंटी. जब भी मैंने बीजी दिया है, पर वी सीक्स एन लेटर, हमने उसका एक अल्टरनेटिव दिया बैंकर को कि भले आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओरिजिनल बैंक गारंटी नहीं लेता है, आप उनसे एक लेटर लिखवा के ले लीजिए. ऑल्दो वी आर नॉट गिविंग एन ओरिजिनल बैंक गारंटी, बट वी कंफर्म दैट देयर विल नो लाइबिलिटी विल बी आस्क्ड फ्रॉम द लेटर पीरियड ऑफ टाइम. बस ये लेटर है, इससे आप क्लोज कर सकते हो. पर कभी कभी बैंकर ये भी नहीं देता, क्योंकि 7 साल पहले का कोई बीजी इशू किया था टेंडर के लिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चल रहा था, वहाँ का डिपार्टमेंट भी बीजी ओरिजिनल उसके पास है ही नहीं, तो रिटर्न कैसे करेगा? और उसको पता ही नहीं मेरे रिकॉर्ड में है कि नहीं है, इसलिए करना ही नहीं है. तो बैंकर फॉलो ए प्रैक्टिस टू सेंड 2 लेटर एटलीस्ट इन बिटवीन 3 मंथ. 3 महीने में 2 लेटर भेजेगा कि आपकी एक्सपायर्ड होगी है, इफ इट इज नीड टू रिन्यूअल प्लीज लेट अस नो. इफ 2 रिटर्न रिमेन अनआंसर्ड देन दे कैन क्लोज इट. सॉरी सर, माई लाइबिलिटी इज स्टिल एग्जिस्ट. यस सर, मैं अभी यही बोला सर, मैं यही बोला अभी. वो 1 साल वाला लेटर वाला बात किया ना, मैं आगे बढ़ नहीं रहा था क्योंकि टाइम शॉर्ट था. इट इज अ वेरी बिग डिबेटेबल इशू. सर मैं इसीलिए उस पॉइंट पे जा नहीं रहा था, पर आपने ले लिया. एनी बैंक गारंटी इशू टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज वैलिड इवन आफ्टर एक्सपायरी अप टू 10 ईयर. इंडसइंड बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014. एक ये ऐसा जजमेंट है, सब बैंकों के लिए दिक्कत वाला काम है. गोपाल भाई बोलेंगे आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू कर दिया, पर कैन अ सर्कुलर, अब अगर आप लिटिगेशन वाले आदमी हो तो मैं और बोलूंगा, कैन अ सर्कुलर सुपरसीड द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट? आरबीआई ने क्या बोला, आप एक ब्रोकन पीरियड 3 महीने का पीरियड ग्रेस ऐड कर दीजिए, उस पीरियड में आप 2 नोटिस भेज दीजिए और क्लोज कर दीजिए. मैं अभी भी उसी पॉइंट पे अटका हुआ हूँ, और अभी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 10 साल तक, मैं ऑर्डर बोल रहा हूँ आपको, इंडसइंड बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, वो बोलता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इवन इफ इट इज एक्सपायर इट इज वैलिड फॉर 10 ईयर. तब बोलता हूँ कि सर लाइबिलिटी अभी भी कंटिन्यू करके चल रहा हूँ. इसलिए क्लोज करना और लेटर लेना इज वेरी कंपलसरी फॉर बैंक.
क्योंकि बैंक को उसको एक्टिव दिखाना पड़ता है. दैट वाज माय पॉइंट. ठीक है, ये मेरे को आपका टाइम अप दिखा दिया, पर आई विल टेक 2 मिनट्स टू रीड दिस 2 स्लाइड्स. दैट्स इट. सर 2 मिनट दे दीजिएगा, लंच बढ़ा दीजिए. आई एम टेकिंग एन परमिशन. ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स एक एक करके फटाफट पढ़ूंगा, जहां आपको लगे 5 मिनट बाद में डिस्कस करेंगे. चार्जेस फॉर इन प्रिंसिपल सैंक्शन आई हैव टेकन. टीवी वेटिंग चार्जेस ले लिया. सैंक्शन मॉडिफिकेशन और चार्ज, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम है. क्या बोला? सैंक्शन मॉडिफिकेशन चार्जेस और एडिशन और अप्रूवल चार्जेस. अब यहां मेरा एक डीजीएम से झगड़ा हो गया कि ओरिजिनली हमने रिक्वेस्ट डाली कि मुझे 8.5% की इंटरेस्ट रेट लगानी है. सर ये केस सबके साथ होता होगा. 11 आई हैव रिक्वेस्टेड 8.5%, द बैंक हैज गिवन मी 9.5%. ओके, मैंने बोला सर मैं नहीं ले पाऊंगा, आई विल गो टू द अदर बैंक. वो बोले नहीं ब्रांच मैनेजर सर रुको रुको, मैं वापस भेजूंगा रिक्वेस्ट. सो वो आपसे रिक्वेस्ट लेगा, सर 9.5 का रेट आया हुआ है पर आप 8.5 दीजिए, नहीं तो मैं नहीं ले पाऊंगा, आई हैव अल्टरनेटिव ऑप्शन. ये जो एप्लीकेशन है ना सर, इसका 1 लाख रुपए चार्जेस है स्टेट बैंक में. हेलो, कितनी बार होता है ऐसे अकाउंट में, और इसमें से कुछ ने अकाउंट रहते हैं, बाकी तो सैंक्शन ही नहीं हो पाते, डिसबर्स ही नहीं हो पाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एन, इसको बोलते हैं हम लोग एडहॉक रिक्वेस्ट. इट्स कॉल्ड एडहॉक रिक्वेस्ट. कोई भी रिक्वेस्ट मैंने सेंट्रल ऑफिस भेजी किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, सर्कुलर देखिए उसमें चार्जेस लिखे हुए हैं. मॉडिफिकेशन के चार्जेस तो दूर की बात है, एडहॉक रिक्वेस्ट है ना उसके भी चार्जेस है. ठीक है, अभी एक और सर, कंसोर्शियम या मल्टीपल बैंकिंग जहां है, पारी पासी अगर शेयर किया है किसी बैंकर के साथ में, इफ माई बैंक इज फर्स्ट बैंक, देर आफ्टर एनी कंसोर्शियम मेंबर और मल्टीपल बैंकिंग हैज बीन एडेड, उसको मेरे को पारी पासी शेयर करना पड़ेगा. हेलो, ऑन करंट असेट उसका 5 लाख रुपए लगता है. आई एम टेकिंग एन वन बैंक नेम, मैं नेम नहीं ले रहा हूँ, मैं उसका बता रहा हूँ. पारी पासू शेयर करने के लिए मुझे सैंक्शन का पार्ट नहीं था, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट बैंकर. मैंने जब सैंक्शन किया था आई वॉज एन सोल बैंकर, तो मेरे पास क्या था, हाइपोथिकेशन ऑन ऑल करंट एसेट ऑफ द कंपनी. नाउ आई एम सेंडिंग टू अदर. क्या मेरे सैंक्शन में अलाउड था? नहीं. आई हैव टू रिक्वेस्ट टू अथॉरिटीज, अथॉरिटी अप्रूव करके आएगी. सर्कुलर में लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ पारी पासिव रिक्वेस्ट सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर एन चार्जेस ऑफ 5 लाख रुपीज. ये मैन्युअल है सर. ये रिकवरी करके 1-1 करोड़ रुपए रिकवर कर देते लोग. आगे बढ़ते हैं. वेरियस चार्जेस ऑन डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, एलसी यहाँ एक है ना, बैंक नॉन फंड बेस्ड, हमको ऐसा लगता है हमारा एरिया ऑफ फील्ड ही नहीं है. हम हर बार देखते कि छोड़ो, इतने सारे लेटर ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, एवरी लेटर मिनिमम 1100 रुपीज है हर बैंक में. बैंक ने एक भी इंस्ट्रक्शन कोई भी लेटर या कम्युनिकेशन किया है ना, 1100 रुपए चार्ज करेगा. हमारे यहाँ कितने होते हैं? एलसी मॉडिफिकेशन चार्जेस, अगर एलसी में कुछ किया है दैट्स रिक्वायर्ड 25% ऑफ ओरिजिनल चार्जेस. ठीक है, इंटरेस्ट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सैंक्शन एक्सपायर्ड एंड रिन्यूअल नॉट रिसीव्ड. सर ये एक मेरा फेवरेट टॉपिक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना सर. मेरा एक सैंक्शन हुआ था, 38 ऑफ जून वॉज द डेट ऑफ एक्सपायरी. 6 बैंक ने रिक्वेस्ट लेटर डाल के सैंक्शन कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के पास भेज दिया ना. उनके पास समय नहीं है, बहुत सारे सैंक्शन पेंडिंग पड़े हुए हैं, 3 महीने 4 महीने निकल गए. जिस दिन 6 महीने होते हैं उस दिन हमारे पास आ जाएगा, उस दिन सैंक्शन हो जाएगा. अब ड्यूरिंग दैट पीरियड इंटरेस्ट रेट क्या लगेगी? हेलो हेलो सर बोलिए ना, खाना खाने जाना है. हाँ, ओरिजिनल सैंक्शन किसको मानूंगा? मैं तो बोलूँ आज ये अकाउंट सैंक्शन ही नहीं मेरे पास. तो से एक लाइन बोलता हूँ, याद रख लीजिएगा सर. कोई अच्छा ब्रांच, जब बड़ा ब्रांच आता है तो ये बहुत काम आएगा. ऑल द कंसेशन गिवन इन द अकाउंट will be waived and expired on the date of expiry of sanction. अब आप मेरा मतलब समझ गए होंगे. 1 भी रुपए का कंसेशन अगर दिया हुआ है वो खत्म है. कार्ड रेट लगेगी सर, क्या लगेगा? 11.5% का रेट लगाना पड़ेगा आपको बोरोवर के अंदर. और अगर उस बैंक का इंटरनल ऑडिटर आ गया तो वो ठोक के जाएगा, नहीं मानेगा सर. खुद पे बीती हुई है.
तब जाके सीखा हूं ये बात। हाँ सर कुछ चीजें एक्सेप्ट करूंगा, लगा दिया जहां जहां सैंक्शन पेंडिंग थे, कार्ड रेट लगाया, सैंक्शन हटा दिए, कंसेशन सब हटा दिए। बीजी में कंसेशन दिया हुआ था, बीजी कंसेशन चार्जेस रिमूव कर दिया। बोले सर ये इस पीरियड में, आज के पास सैंक्शन है क्या? पहले तो आपने बीजी कैसे इशू की? द वैलिडिटी ऑफ सैंक्शन हैज एक्सपायर्ड। आपको बीजी इशू ही नहीं करनी चाहिए थी। सर 2-2%, 3-3% का इंटरेस्ट लग जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक और मैंने बोल दिया, बुकिंग ऑफ इंटरेस्ट इन एनपी अकाउंट। एनपी अकाउंट में ना हमेशा एफआईटीएल और एनपी अकाउंट, एक बात जरूर देखिएगा, सर ने बोला है कि वो रिवर्सल का जो टाइम है ना, अकाउंट को एनपीए कर दिया है, रिवर्स कर दिया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होना प्रॉब्लमेटिक है। एफआईटीएल की अगर कहीं भी दिख जाए, एफआईटीएल इज अ सेपरेट हेड इन द बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हेनेवर यू लुक्स एट एफआईटीएल, आपको दो चीजें देखनी है, वेदर द 100% प्रोविजन ऑफ दैट अमाउंट हैज बीन टेकन और नॉट। एफआईटीएल क्या है? इनकम में बुक कर दिया गया होगा। जनरली एनपीए अकाउंट में इंटरेस्ट बुक नहीं होता, पर एफआईटीएल इज एन रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट। जहां भी रीस्ट्रक्चरिंग हुआ होगा एफआईटीएल क्या होगा, और एफआईटीएल इज एन बुकिंग ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू बुक कर दिया होगा, पर सेम टाइम पे उन्होंने सेकंड टाइम लाइबिलिटी में क्या किया होगा, उतना ही प्रोविजन भी क्रिएट कर दिया होगा खर्चे का। सो दैट इज फाइन। जहां आपको एफआईटीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख जाता है, आपको ये देखना है कि एफआईटीएल जिस दिन खत्म हो रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाए कि नहीं लगाए। हेलो, एफआईटीएल टर्म लोन ने 1 करोड़ रुपए का बना दिया, उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। सो एफआईटीएल विल बी ऑल्सो चार्जिंग एन इंटरेस्ट रेट। 6 महीने 6 महीने 1 साल जो भी पीरियड रीस्ट्रक्चरिंग का दिया होगा, उस पीरियड में एफआईटीएल का इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। रिटेल लोन चार्जेस वेवर। रिटेल लोन में एक चीज हमारा मिथ बना हुआ है कि जनरली रिटेल लोन में चार्जेस वेवर, कोई बोनांजा या स्कीम चलती रहती है, बट वी नेवर सी कि किस पीरियड में चल रही है। कमीशन ऑन इंपोर्ट बिल, मैंने बोला कि डिफरेंट, हाँ एक बैंक का एक प्रॉब्लम है, कमीशन ऑन इंपोर्ट बिल्स रेट्स आर डिफरेंट इन केस नो इनकम ऑन एक्सचेंज इज देयर। बीजी पे कमीशन मतलब इंपोर्ट की रेट क्या होगी, कमीशन चार्जेस करते हैं फ्यू अमाउंट्स, पर सम टाइम इट इंक्रीज बाय 1.25% इफ बैंक इज नॉट गेटिंग एनी फॉरेक्स चार्जेस। नहीं मिल रही तो चार्जेस बढ़ा देते हैं, वो आपको सर्क्यूलर ही पढ़ना पड़ेगा। जनरली सिस्टम इंप्लीमेंटेड है, बीजी का चार्जेस फिक्स्ड है, एलसी का चार्जेस फिक्स्ड है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बैंक सेंट्रलाइज लेवल पे एलसी बीजी ओपन कर रहे हैं। ये अच्छा है, बिकॉज ऑफ डूइंग ए रेस्ट्रिक्शन वो अच्छा काम कर रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग चार्जेस एग्जम्पशन मैंने बोल दिया, क्या बोला था, डिजिटल बैंकिंग चार्जेस एग्जम्पशन 1 साल के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए बैंक वाला क्या करता है, वेव नहीं करवाता है। एलसी अमेंडमेंट चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन एफआईटीएल, इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरिटोरियम पीरियड। एजुकेशन लोन में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं हो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। बीजी कमीशन, लीकेज मार्जिन, एमसीएलआर, ऑटो नॉट सेट, या ये एक प्रॉब्लम है। एक बैंक में एमसीएलआर का एक ऑप्शन है, ऑटो अपडेटेड और नॉट अपडेटेड। वो ऑटो पे अगर टिक नहीं हुआ तो प्रॉब्लमेटिक है। तो मैंने एक नीचे लिखा है MCLR2। अभी क्या होगा, मेजोरिटी ऑफ अकाउंट विल फॉल अंडर MSME। 500 करोड़ का जो चेंज हो गया है ना लास्ट ईयर का, कि टर्नओवर मोर अप टू 500 करोड़ रुपीज विल बी फॉलिंग अंडर MSME। व्हेन इट फॉल अंडर MSME, द एवरी अकाउंट विल फॉल अंडर EBLR। MCLR नॉन MSME के लिए लगता है, तो EBLR में फॉल करेगा तो देयर विल बी अ रिवर्स, मतलब उल्टा ही है, फायदा ही होगा, मैं मानता हूं। बट मैंने क्या बोला था, रेवेन्यू लीकेज विल बी बोथ साइड, आइदर इट इज पॉजिटिव आइदर इट इज नेगेटिव। अगर किसी ने रिकवरी निकाली और बोरोवर आया, डिस्प्यूट खड़ा कर दिया तो प्रॉब्लम है आपके लिए। तो इट इज बैंक्स राइट ड्यूटी टू अपडेट टू EBLR। सो दैट इज माई today's delivery, whatever I can deliver in the time. My time was already out. Thank you for allowing me extra 10 minutes and for your patience listening. Hope I could able to deliver a little bit few insights from my side. I am really thankful for the WIRC for giving this opportunity and inviting me over here. If you have any problem or query, I shared this slide to WIRC already. I welcome if you have any facing any difficulty at any point of time, I'll be happy to guide you. हम और गोपाल भाई लगभग we are into the panel of banking queries शायद state audit में भी, so we'll be happy to answer all of their queries. Thank you so much. Thank you. So thank you Rohit bhai, and good afternoon friends.
So just briefly introduce myself. My name is Rakesh Shah. I'm one of the regional council member out of 21 and presently holding the position of treasurer in the office bearer. First of all, apology because multiple programs are going on. That's why in all the session office bearer you will not find over here. I'm sure, as I also observed for last half an hour, the session has been amazing. Especially I like the Rohit Bhai's skill to connect with the people and consistently keep engaging. And he's not allowing you to sleep with his special, the way he is addressing all of you. So Rohit Bhai, you have been excellent extempore in entire session. I liked it. So though it's not my area of expertise, I am purely statutory audit guy. I am working in Deloitte, and my entire 25 plus year I have been in the area of statutory audit. But I like the way you delivered the session. Thank you very much. On behalf of WRC, I offer a formal vote of thanks to you. Thank you very much. We assemble back, we'll break for lunch, and we assemble